So continuing with the engineering mechanics, lecture number 3, this is where we determine the value of reactions at the supports, and we also, just a minute, Kanjan is here, nice. So yes, uh, these are the type of questions that appear in Astu paper also. So not exactly the same question I have taken out, but very similar, very similar. Inclined load, um, and then straight vertical load, or and UDL, uniformly distributed load. We have been asked in this question. Let us solve this question, and then we will solve the question on the basis of method of sections. We'll solve a question using method of sections, kind of the same question that we have previously solved in the method of joints. Kanjan, am I audible to you? Yes, Yes, sir. yes, sir. All right. So here we have, you see, this is the first question that we are going to solve today. A beam AB has been given. Both the ends have supports. One is known as hinge support. What kind of support is this? Can anyone tell me? What kind of support is the support B? All of you. What is the name of this support? Anyone? Any idea? Khanjan, any idea? What is the type of support B? Simple support. Simple support to A2 होगा. A2 होगा. A2 is simple support. वैसे but याद किबा आसे. These and these two are different. Ruler support. Yeah, roller Rolling support. support, sir, maybe. Yeah, roller support. So there are two types of support. One is hinge support and the other is roller support. So hinge support, sorry, bhal ke likhe diya yahan par. So I'll have hinge support on the beams, and we will have roller supports. And the third type of support is known as fixed support. Fixed support. तो अभी हम लोग दो चीज के बारे में बात करेंगे, दिस टू. अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, बेसिकली क्या होता है कि in colleges, whenever you are learning about the supports, this type of supports, they do not describe you properly कि हाँ ये support कहाँ use होता है, कैसे हम लोग इसको पिक्चराइज करते हैं, हम लोग क्या ध्यान देना चाहिए, कहाँ यूज होता है, ये तो डायग्राम में है हमारे पास. बट इफ यू सी क्लोजली and if you see a diagram, yeah, if you see a bridge, so hinge and roller support in bridges, if you see closely you will have an idea. Images, the images दिखाई दो. Can you see this, all of you? All of you, this is a hinge support. Yes, sir. This is a hinge support completely fixed to the ground, but this is a hinge. About hinge means something can rotate like this. Okay, it allows the यानी कि डोर में क्या है, हिंज है. And this is kind of a support which is known as roller support. It is placed under the bridge, and these rollers are provided. क्यों प्रोवाइड किया था ये भी बताऊंगा मैं आपको. जैसे कि these are roller support, this is a roller support. Got my point, all of you? ठीक Yes, है. sir. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि मैं ये सब चीज आई टीच माई वट एवर आई टीच बाय शोइंग यू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. ये है रोलर सपोर्ट, देख लो. और इतना गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप छोड़ा हुआ है बिटवीन द वॉल एंड दिस. सो देयर इज अ रोलर सपोर्ट आउट हियर, यू कैन सी. इसके ऊपर ब्रिजेस को स्टेशन किया गया है ऑन द पिलर्स बेसिकली. सो यस, दिस आर द टाइप ऑफ सपोर्ट्स दैट वी टॉक अबाउट. एंड रोलर सपोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू टेल मी गाइज, हाँ, ब्रिजेस जो है वो मेटल कंपोनेंट्स या मेटल मेंबर्स का बनता है. मेटल मेंबर्स का बनेगा. ये मेटल मेंबर्स को अगर हम लोग हीट करते हैं या फिर समर में बाहर रखते हैं, যদি আমি বাহিৰত থৈ দিওঁ বা গৰমত মানে সামাৰ ডেজত টেম্পারেচার চেঞ্জেস হয়, টেম্পারেচারটো বাঢ়ি যায়, what will happen to the members? It will try to what? Expand, হয় নে নহয়? So টেম্পারেচার ইনক্রিজ কৰিলে এক্সপেনশন হ'ব. To allow the expansion of the bridge to some extent, this roller support is provided so that this roller support can move in this direction. Got my point, all of you? Is it clear to you guys so far? किसी को डाउट है? Yes, sir. ठीक है. Nice. Yes, sir. तो हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना पड़ेगा कि हिंज सपोर्ट में क्या होता है. जैसे कि हिंज सपोर्ट, ये समझता हूँ.
तो हिंज सपोर्ट ऐसे हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो हिंज सपोर्ट में क्या होता है कि ऊपर से वर्टिकल लोड, देयर इज अ वर्टिकल लोड, ऊपर से लेके नीचे एक लोड लगा, तो हिंज सपोर्ट में एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ। और अगर वो मेंबर या बीम पे अगर कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे या लोड ऐसे लगा, ये एक्सटर्नल लोड है, ये लोड मान लो ऐसे करके लगा P1 मेंबर पे, और एक लोड लगा P2, तो ये हिंज क्या करेगा, दिस हिंज विल नॉट अलाउ P2, विल नॉट अलाउ द बीम टू गो ऑन दिस साइड। क्यों? क्योंकि हिंज जो है उसको पकड़ के रखा है। तो डेफिनेटली because of P1 the reaction will be vertical reaction, and there will be another horizontal reaction also to combat or फिर to resist the and resist any horizontal forces also, there will be reaction horizontal also. But in case of roller support ना, what happens in roller support कि भाई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा मान लो P1, तो उसके लिए वर्टिकल सब रिएक्शन तो आएगा, देयर विल बी वर्टिकल रिएक्शन। But if there is any form of horizontal support, horizontal load P2, so there is no horizontal reaction. There is no horizontal reaction because these roller supports are meant to move the beam in horizontal direction. तो ये रेजिस्ट नहीं करेगा, इसमें अगर कोई लोड इस तरफ लगता है तो ये इसको क्या करेगा, ये मूव करने दे देगा। बोले यार ठीक है भाई, आई विल नॉट रेजिस्ट यू, आई विल नॉट रेजिस्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्स, you can have some displacement, but this hinge will not allow the displacement to happen, because of which the beam is definitely not going down। कोई एक मेंबर है, ये नीचे तो नहीं जाएगा because there are supports RA and RB, and when the beam when there are horizontal supports या horizontal forces है, then hinge will say कि भाई ना, you cannot go। जैसे कि same thing happens, for example there is a door, what happens as a door, यहाँ पे डोर है एक, और उस तरफ आप लोगों का डोर पे हिंजेस लगा हुआ है, तो डोर को आप इस तरफ पुल करो, नहीं हो पाएगा। यू कैन नॉट पुल द डोर ऑन दिस साइड, देयर विल नॉट बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोर टुवर्ड्स यू। यू कैन नॉट, द डोर डज नॉट मूव डाउनवर्ड्स ऑल्सो, डाउनवर्ड मूवमेंट भी नहीं होता है, नहीं होगा। अगर आप उसका तो वेट लगा ही हुआ, mg तो लग रहा है डोर का, बट इट इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड्स। और ये अगर आप इसको इधर पुल करना चाहते हो तभी भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ऐसे करके फोर्स लगाते हो तो बी दिस डोर विल रोटेट, डोर का रोटेशन तो हो जाएगा फॉर श्योर। Door opens and closes because of the hinges, but door does not go down or door does not move in this direction because of the hinges. Hinges are resisting it. So these are hinge supports. So hinge support will always resist what? Both the vertical and horizontal loads, whereas roller support will resist or will provide reaction only to vertical loads. Horizontal load के लिए कोई भी reaction नहीं आएगा। Am I clear all of you guys? Both of you at least? Yes or no guys? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, रिएक्शंस एट ए आएगा, रिएक्शंस एट ए विच विल बी वर्टिकल बिकॉज देयर आर वर्टिकल लोड्स, यूडीएल सब है। तो देयर विल बी रिएक्शन एट बी ओनली वर्टिकल लोड बिकॉज वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा। Now there are three loads, 5, 1.5 and 4. फाइन, तो हमारे पास 5 किलोन्यूटन का लोड यहाँ पे कर देते हैं, दिस इज 5 किलोन्यूटन का लोड, फाइन। और ये 1.5 किलोन्यूटन, तो 1.5 किलोन्यूटन इज गिवन एज यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फॉर 2 मीटर, 2 मीटर के लिए। सो 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर है लोड यूडीएल, तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर इसको हम लोग 2 मीटर तक कर देते हैं तो फॉर 2 मीटर्स इसका हो जाएगा 1.5 इंटू 2, यानी कि टोटल लोड हो जाएगा 3 किलो न्यूटन, बिकॉज 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर, एक मीटर में 1.5 किलो न्यूटन है, 1.5 किलो न्यूटन है, सो 2 मीटर और किमान होगा 1.5 इंटू 2, दैट इज 3 किलो न्यूटन। सो द टोटल लोड बिकॉज ऑफ दिस यूडीएल विल बी 3 किलो न्यूटन, एंड वेयर इट विल वर्क, since it is uniformly distributed load, uniformly distributed load माने कि suppose if you take a bar, steel bar, यानी कि ले लो, you take a steel bar of 30 centimeter, यानी कि ले लो, you can balance it right at the center, na এফালে পড়িব না এফালে পড়িব, you can just balance it because the center of gravity is here,
So this entire thing has distributed load. सब जगह तैयार mass আছে, but the entire mass is concentrated at the CG. So 1.5 into 2, that is 3 kilonewton, will be acting at the CG of the UDL. इसका पूरा 2 मीटर का आधा पे काम करेगा. So this will be 3 kilonewton. So 5 kilonewton is working at a distance of 2 मीटर, और ये 2 का आधा पे, यानी कि ये काम करेगा 1 पे. तो 2 plus 1, this will be 1 meter. So 2 plus 1 will be 3 meter. This much. एंड ये 4 किलोन्यूटन है, 135 डिग्री पे है, देख लो. तो 135 ये है, तो डेफिनेटली ये 45 होगा गाइस. दिस विल बी 45 क्योंकि 180 डिग्री होता है. सो आई हैव 4 किलोन्यूटन समथिंग लाइक दिस. सी, आई हैव 4 किलोन्यूटन विच इज एन इंक्लाइंड लोड. दिस इज अ काइंड ऑफ एन इंक्लाइंड लोड. तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 किलोन्यूटन हो जाएगा 45 डिग्री पे. तो for 4 cos 45 there are two components. So one is horizontal component which is 4 cos 45, and there is 4 sin 45. So I'll have cos 45 is 1 by root 2, sin 45 is 1 by root 2. So 4 by root 2 kilonewton is acting horizontally, and 4 by root 2 is acting kilonewton is acting vertically. So there are two types of load here. Because of 4 kilonewton, there are two components of the load acting on it, acting on the beam given to you. So there will be two components. One will be something like this, यहाँ पे होगा, which will be 4 by root 2, 4 by root 2, and there will be one horizontal component at this point acting यहाँ से. तो इस पे हम लोग ऐसे कर देते हैं guys. So this is also 4 by root 2 kilonewton. Am I clear, all of you, both of you? Yes, sir. So Yes, we sir. will we have drawn the free body diagram. We have used all the given data, or all the given types of load to us, and we have replaced them with point loads. ऐसे loads को हम लोग point और concentrated load बोलते हैं. जैसे कि 5 kilonewton को बोलते हैं point load और concentrated load. At one point it will be concentrated for sure. ये रहा हमारा सिचुएशन. अब क्या है कि हम लोग को रिएक्शन एट, ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन तो मिल गया एट ए, बट 4/2 किलोन्यूटन इज एक्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड. सी, तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल लोड देयर विल बी रिएक्शन एट दिस एंड. हिंज सपोर्ट पे होगा, रोलर सपोर्ट पे नहीं आएगा. सो देयर विल बी रिएक्शन एट ए हॉरिजॉन्टल. तो हमारे पास रिएक्शन एट ए निकालने के लिए पहला तो हम लोग देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट ए. तो एट सपोर्ट ए we will have 4 by root 2 kilonewton, यानी कि नेट सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि 4 by root 2 माइनस आर ए एच मस्ट बी इक्वल टू 0. 4 by root 2 is towards positive x direction, आर ए एच डेफिनेटली उल्टा साइड में रेजिस्ट करेगा तो उल्टा ही होगा भाई. तो फ्रॉम हेयर आई हैव reaction at A which is horizontal, I'll get 4 by root 2 kilonewton. This is the value of horizontal support. तो आपको जब horizontal reaction at support A, तो horizontal reaction निकाल लिया आप लोगों ने. अब vertical reaction निकालने का बारी. जब आप vertical reaction निकालोगे तो you will have to determine, and you will have to form two type of equation because I have two unknowns, RA vertical and RB. So I have RA, the vertical component, plus RB will be equal to, ये क्या है, sum of forces in y direction must be equal to 0, must be equal to sum of two upward forces and बाकी तीन downward forces है. तो I have 5 plus 3 8, 8 plus 4 8 plus 4 by root 2 ऐसे आएगा. तो ये 8 कहाँ से है, 5 plus 3 से है. Am I clear, all of you? Is there any Yes, sir. doubt? ठीक है. तो Yes, एक sir. तो ये हो गया हमारे पास. और दूसरा, क्योंकि सिंस वी हैव टू अननोन्स, आई मस्ट फ्रेम टू इक्वेशंस सो दैट द अदर इक्वेशन विल कम फ्रॉम मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट. यू कैन टेक पॉइंट ए और यू कैन टेक पॉइंट बी. इट्स गुड फॉर अस दैट वी टेक पॉइंट ए. चलो अच्छा से हो जाएगा हमारे लिए. तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू 0. So the total span of the beam is 6 meter given to you. This is entirely is 6 meter. ठीक है. ये 2 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे है, और ये डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर है. देख लो, दिस थिंग इज 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक. तो हमारे पास सब जितने भी लोड्स है
5 kilonewton, 3 kilonewton, 4 by root 2 kilonewton, and RB, all the forces, all the loads have their respective distance from point A. Since we are calculating the moment about point A, the net moment about point A, sum of moment about point A must be 0. It means क्या? RB का tendency about A कितना होगा? The moment will be RB into 6. It will be anti-clockwise. So this implies RB into 6 anti-clockwise. फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? ये 5 किलोटन जो है ये क्लॉकवाइज घुमाएगा अबाउट ए देख लो ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज इज जस्ट समथिंग लाइक अगर कभी भी आपको ऐसा डाउट हो तो पॉइंट ए को आप ये समझ लो यू आर होल्डिंग अ पेंसिल इन योर फिंगर बिटवीन टू फिंगर्स इंडेक्स फिंगर एंड थंब और ऊपर से एक लोड लगाओ ऐसे करके तो उसका टेंडेंसी क्या होगा ऐसे घूमने का एक ना पेंसिल क्लॉकवाइज घूमेगा अगर नीचे से फोर्स लगाओगे तो पेंसिल अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा समझने सो आर बी इंटू 6 माइनस क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो 5 इंटू टू क्या लेंगे 5 इंटू टू क्लॉकवाइज फिर उसके बाद आएगा माइनस दिस 3 इंटू 3 किलोमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर because this was because of UDL and 4 by root 2 is at a distance of 4 meter so this is 4 meter this is 4 meter so minus 4 by root 2 into 4 ये सब कुछ क्लॉकवाइज है देख लो और ये हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से कोई भी मोमेंट नहीं बनेगा बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ए तो क्या होता है जैसे कि जब मोमेंट के बारे में बात होता है आप ध्यान से सुनना यू टेक अ डोर और विंडो एक हिंज है दोनों उस तरफ हिंज लगा हुआ है ठीक है तो अगर आप वर्टिकल फोर्स लगाते हो तो डोर घूम जाता है बिकॉज द डोर हैंडल्स आर प्रोवाइडेड लाइक दिस डोर हैंडल्स आर नेवर प्रोवाइडेड ऑन दिस साइड क्योंकि आप इसको पकड़ के इधर खींचोगे डोर नहीं घूमेगा क्यों बिकॉज दिस लोड इज पासिंग थ्रू द हिंजेस जिसके अबाउट मोमेंट आएगा so if you apply the force like this or like this इस पे ऊपर तो ये डोर नहीं रोटेट करेगा बट इफ यू अप्लाई द लोड जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लोड ऑन दिस साइड will make the door rotate am I clear all of you so वही होता है Yes, जब sir. 4 by 2 किलोमीटर 4 by root 2 किलोमीटर is passing through A is the same load ये 4 by root 2 है समझ लो और ये A है तो passing through A if the load is passing through the axis of rotation then definitely it will not have any moment or torque whatsoever so यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 so यहाँ से वैल्यू RB का निकल जाएगा देख लो RB into 6 is equal to 5 into 2 10 3 into 3 9 plus 16 by root 2 ऐसे आ रहा है प्लस 9 ऐसे तो यहाँ से आरबी का वैल्यू आप कुछ निकाल लोगे वॉट एवर द वैल्यू ऑफ आरबी इज यू सॉल्व इट एंड आरबी का वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो आरबी को उधर ले जाओ यू विल गेट आर ए वी यानी कि वर्टिकल रिएक्शन एट ए दिस इज हाउ यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स where forces like inclined forces are given to you along with roller support on one end of the beam दोनों तरफ कभी भी रोलर सपोर्ट नहीं होगा गाइस अदरवाइज दिस थिंग विल बी अनस्टेबल बिकॉज थोड़ा सा भी लोड में ये चला जाएगा इधर so this is the way we solve numericals for finding out the reactions at the supports am I clear all of you Rutpal Yes, sir. Rutpal बुझे पैसा Yes, sir. yeah Yes, sir. क्या किया है this is one of the question guys इसको मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करना है तो मेथड ऑफ सेक्शंस का कुछ रूल्स भी मैं पूछूंगा आपसे और आप बताना मेरे को ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल a truss of span 5 meter is loaded and given to you in the figure fine 5 meter का है 60 30 সেদিন আর নিচিনা কৰাইছিলো না তুমি আসলা না খঞ্জন তুমি আসলা right this Yes, sir. ठीक है find the reactions and forces in the members marked 4 5 7 तो reactions पहले RA and RB निकाल लो फिर 10 किलोटन और 12 किलोटन तो एक्स्ट्रा लोड दिया हुआ एक्सटर्नल लोड दिस आर द एक्सटर्नल लोड गिवन टू यू 10 and 12 and RA and RB हमारे पास reactions हैं this various values are given to you this is definitely this is 90 डिग्री यहाँ पे ऐसे करके है ये 30 है ये 90 ये 90 है ये 30 है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ 60 है 60 है वॉट एवर ठीक है अब ये 5 मीटर तो उस दिन ये क्वेश्चन किया था मैंने 10 and 12 का तो देखते हैं 10 and 12 का ही है कि नहीं हाँ 10 and 12 भी है तो यहाँ से रिएक्शन एट ए एंड बी निकाला था मैं फिर से आपको निकाल के दिखा देता हूँ because Hirutpal is new here he has not watched that lecture he was absent in the previous class but anyways
तो आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, sum of moments, sum of forces in the y direction must be, net forces in y direction must be equal to 0. तो आर ए प्लस आर बी ऊपर की तरफ काम कर रहा है, बाकी दो फोर्सेस नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। तो 10 प्लस 12 आई हैव 22 किलोमीटर। पहला इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन, तो हम लोग को सम ऑफ मोमेंट्स, दिस इज द सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड देन वी विल हैव सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनीथिंग, आई कैन हैव मोमेंट्स अबाउट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। फाइन। तो आपको इसका निकालना है। 10 किलोन्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन देख लो ऐसे है नीचे की तरफ, और 12 किलोन्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन भी ऐसे है नीचे की तरफ। समझ नहीं दिस? सो वी हैव दिस। मैं कुछ कुछ चीज को इरेज कर दे रहा हूँ बस। तो हम लोगों को रिएक्शन सेट, इफ आई टेक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए, तो आर बी कितना डिस्टेंस पे, 5 पे, तो आई विल हैव आर बी इंटू 5, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, देख लो। और 10 किलोमीटर डायरेक्शन नीचे है, तो अबाउट ए आई विल हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड the point about which we are considering the moment. So the point which we are considering the moment is A. A के about 10 किलोन्यूटन का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग को इतना डिस्टेंस निकालना है। एंड दिस इज 90 डिग्री, ये 60। तो 2.5 को अगर रिजॉल्व करते हैं यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ, तो ये बेस में आएगा। तो ये बेस का मतलब क्या हुआ, दिस इज 2.5 cos of 60। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? If there Yes, is sir. an inner, ठीक है। तो 2.5 cos of 60, तो this point 2.5 cos of 60, cos 60 is half, तो 2.5 into cos 60 is half, I have 1.25 meter. So RB into 5 anti-clockwise minus 10 into 1.25, this distance is 1.25, यहाँ से यहाँ तक is 1.25, एंड फिर 12 का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1.25, ठीक है। तो ये 60 60, ये भी 60 होगा गाइस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 2.5, तो AC इज 2.5, AC इज 2.5, फाइन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो AC का वैल्यू 2.5 आ गया। अभी हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, यानी कि 12 किलोमीटर के लिए हम लोग को पूरा का पूरा आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, दिस वन, ये ऑरेंज कलर में जो मार्क आ रहा है, सो ये ऑरेंज कलर का जो मार्क है उसको हम लोग को निकालना है, दिस मच इज द डिस्टेंस दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो डिस्टेंस फॉर 12 किलोमीटर, ये पॉइंट जो होगा इसका निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज 2.5 और ये वैल्यू, ये CE, ध्यान से सुनना गाइस, हाँ, CE कितना होगा, तो CB इज हाउ मच, अगर AC इज 2.5, AC इज 2.5 मीटर, देयरफॉर CB इज आल्सो 2.5 मीटर। तो हमारे पास ध्यान से देखो तो एक 90 डिग्री पे एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे करके, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, समथिंग लाइक दिस, दिस इज C, दिस इज E, दिस इज B, CB इज 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर को अगर हम लोग उधर रिजॉल्व करते हैं, तो 2.5 cos 60 कितना हो जाएगा, 2.5 cos 60 is 1.25 meter. Am I clear all of you? Yes, sir. 2.5 है। और फिर हम लोग को यहाँ से 12 किलोमीटर ऐसे काम कर रहा है, देख लो। तो हम लोग को एक यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम लोग को इतना डिस्टेंस, इफ आई फाइंड आउट दिस मच डिस्टेंस, दिस वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाए, तो हम लोग AC पे ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 1.25 को वापस नीचे लाएंगे, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 60, so this value will be 1.25 cos of 60 degree, so I'll have 1.25 into cos 60 is half, I have 0.625 meter, so I had 0.625 meter this much, और total distance कितना हो जाएगा, this distance will be equal to 2.5 plus 0.625, so I'll have 3.125, check कर लो guys, 3.125 meter, तो माइनस 12 किलोमीटर, दिस इज द लोड इज 12 किलोमीटर, तो 12 इंटू कितना करना पड़ेगा, 12 इंटू 3.125, 12 इंटू 3.125 मीटर इज इक्वल टू 0। तो आरबी के लिए आ गया, 12 के लिए आ गया, 10 के लिए आ गया, बस काम खत्म। सो फ्रॉम हेयर इफ आई विल फाइंड आउट आरबी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, वी विल हैव, ठीक है, तो 10 पॉइंट, तो 12.5
प्लस हम लोग को ये करना पड़ेगा, सो आई हैव 12 इंटू 3.125, इधर जाएगा तो प्लस होगा, इधर जाएगा तो प्लस होगा, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। सो आई हैव द वैल्यू एज 12.5 प्लस 12 इंटू 3.125 डिवाइडेड बाई 5। तो हम लोग को आरबी का वैल्यू 10 आएगा, चेक कर लो। आरबी का वैल्यू 10 किलो न्यूटन आएगा, आर ए का वैल्यू हमारे पास 22 है। देखो आर ए और आरबी 10, आरबी 10, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आर ए का वैल्यू 12 किलो न्यूटन आएगा। तो आई आई गॉट द सेम वैल्यूज अगेन, पिछला क्लास में जो मिला था मुझे अभी भी वही मिला। तो आर ए आरबी मिल गया। अब नाउ हाउ वी विल यूज मेथड ऑफ सेक्शंस। मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है guys? ये भी सीख लो। मेथड ऑफ सेक्शंस में क्या ध्यान रखना है, विल हैव टू ड्रॉ अ सेक्शन। पहला बात, a section line has to be drawn, a section line has to be drawn such that it divides the truss or frame in two parts. I am not saying two equal parts, I am saying two parts, अलग अलग पार्ट्स में, टू पार्ट्स में अलग हो जाना चाहिए, ऐसा सेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। दूसरा चीज पे ध्यान देना है, सेक्शन लाइन cannot section line cannot pass through, it should not pass through more than what, more than three members in which forces are unknown. Am I clear all of you so far? कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करता है। जैसे कि अभी मैं वो डायग्राम इफ आई ड्रॉ दैट पर्टिकुलर फ्रेम को मैं यहाँ लोड बना लेता हूँ। देखो तो यहाँ पे एक ऐसा है, ये 5 मीटर है, फिर आई हैव दिस वन एज 2.5 मीटर, ये 60 डिग्री पे ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। आई हैव दिस एज 60 डिग्री, सिंपल एज दैट, एंड देन फ्रॉम हेयर आई विल ड्रॉ अनदर 90 डिग्री लाइन, 30 डिग्री, ऐसे हो जाएगा, ऐसे जाएगा। पे अटेंशन एवरीवन, हाँ। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा, जैसे इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। आई एम ड्रॉइंग दिस फ्रेम जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से। सो दिस इज हमारे पास क्या था, दिस वन वाज ए बी एंड बीच में सी था। तो आई हैड ए बी एंड सी, तो ए बी एंड एट द सेंटर वी हैड सी, समथिंग लाइक दिस। सो फ्रॉम हियर वी हैड अनदर मेंबर, समथिंग लाइक दिस। इसका भी वैल्यू 60 डिग्री पे था, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 2.5 मीटर, द एंटायर ए बी इज 5 मीटर। यहाँ पे आपके पास सपोर्ट्स है आर ए और यहाँ पे आर बी, तो रिएक्शन एट द सपोर्ट्स मिल गया यहाँ पे दिस, और यहाँ पे हमारे पास ये 5 मीटर हो जाएगा, फाइन। लेकिन सी से एक और लाइन आ रहा है, सी से अनदर लाइन वी हैव विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? ये जो दिया हुआ है वही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, सी। सो आई हैव 10 किलोन्यूटन हियर, I have 12 kilonewton out here. External loads हमारे पास है, फाइन। सो वी हैव दिस वैल्यू, ऊपर की तरफ D, नीचे E, ठीक है, दिस इज D और नीचे E आ गया यहाँ पे, तो दिस इज C। तो हम लोग को फोर्सेस किस में निकालने बोला है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द फोर्सेस इन द मेंबर CB, CE एंड DE, तीन मेंबर में बोला है। देखो तो 457, 457 कौन सा है, 457 ये मेंबर है। तो 457, दिस इज मेंबर नंबर 4, दिस इज मेंबर नंबर 5, दिस इज मेंबर नंबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये तीन अननोन मेंबर्स है ना, जिसमें लोड मुझे पता नहीं है कितना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ सेक्शन सच दैट इट कट्स थ्रू ऑल दिस थ्री अननोन मेंबर्स। तब क्या होगा, विल ड्रॉ वन सेक्शन, सेक्शन लाइन अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे। इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? देखो तो ये तीनों को कट करते हुए जा रहा है ना, दिस इज सेक्शन लाइन 1 1, मान लिया। जब ये तीनों को कट कर दिया तो सेक्शन के इधर और इधर दो पार्ट हो गया फ्रेम का, तो द टू पार्ट्स ऑफ द फ्रेम नाउ विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखो प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। सो दिस विल बी
वन पार्ट ऑफ द फ्रेम विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे बी आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ पे आर बी आएगा, फाइन। एंड देन फ्रॉम बी वी विल हैव अनदर मेंबर समथिंग लाइक दिस। तो इसको मैं थोड़ा सा इलोंगेट कर देता हूँ ऐसे करके। सो यहाँ पे 30 डिग्री पे आ रहा है, तो दिस इज एट 30 डिग्री, थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेता हूँ ऐसे करके, फाइन। और यहाँ पे एक लोड ऐसे एक और सेक्शन का इधर का ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम ड्रॉइंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन। सो आई विल हैव अनदर मेंबर विच इज ई से आ रहा होगा। सो फ्रॉम ई आई विल हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? कोई डाउट होगा तो बताना। हाँ, सो आई एम ड्रॉइंग दिस लाइंस। Okay, sir. So I am drawing these lines. I am drawing the section, या फिर the part of the truss on the right hand side. On the right hand side of किसका? I am drawing it on the right hand side of the section given. Section that we have drawn. So यहाँ पे क्या हो रहा है guys? देखो, यहाँ पे draw किया. This point is E. अब हमारे पास क्या क्या members है? 4, 5, 7. अब हमारे पास ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है। तो मेरा मर्जी, मैं कोई भी फोर्सेस ले लो, तो फोर्सेस का डायरेक्शन कुछ भी ले लो। इफ आई टेक एफ बी, एफ ऑफ 4 ऐसे, एफ ऑफ 5 ऐसे, और एफ ऑफ 7 ऐसे, ऐसे ले लिया मैंने। तीनों में फोर्स, तीनों ही निकालना है हम लोग को। सो हमारे पास इधर जो है वो डॉटेड लाइन से मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके। वी हैव डी, देन वी हैव सी ऑन दिस साइड, ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं guys। यहाँ पे ऐसे, सॉरी ये थोड़ा सा इधर होगा। मैं आपको, काइंडली बी पेशेंट, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके ले रहे हैं, ये डॉटेड लाइन से ये समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट सी पे आ रहा है, ऐसे करके, जैसे सी। और फिर यहाँ से हमारे पास ये डी हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 12 किलोमीटर। दिस इज, जो भी राइट हैंड साइड में जो भी फोर्स काम कर रहा है उसको एक बार ड्रॉ कर। दिस इज 12 किलोमीटर एक्सटर्नल लोड। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो गाइस। ठीक है, तो एक बात बताओ तो ये ये नीचे की तरफ सी तक आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग को F5, F4, F3 निकालना है, F7 निकालना है। आई हैव टू टेक द फोर्सेस या फिर मोमेंट्स। अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मोमेंट अबाउट ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा। वील हैव टू कंसिडर द मोमेंट अबाउट सच पॉइंट्स जिसके अबाउट कोई एक अननोन रह जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इफ आई टेक द सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ई, स्टेबिलिटी के हिसाब से तो जीरो होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट देयर शुड नॉट बी एनी मोमेंट अबाउट ई। मोमेंट अबाउट ई लेने से देखो तो क्या क्या लोड आ रहा है, क्या क्या लोड्स का और क्या क्या डिस्टेंस आ रहा होगा। पे अटेंशन एवरीवन। हाँ, तो अबाउट ई, आरबी का एक आरबी का एक मोमेंट बन रहा होगा। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये डिस्टेंस, यानी कि यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दिस लाइन, यानी कि यहां से लेके यहां तक इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। सो आई नो आर बी। तो अबाउट ई, what are the forces which will have moments? That is only RB and F4। F4 और RB का ही रहेगा। F5 passing through E, F7 passing through E, 12 किलोमीटर passing through E। तो हम लोग को मिल गया ना भाई। Got my point all of you? Tell me guys। Yes, sir. तो हम लोग को क्या F4 मिल रहा है ना। देखो आई एम टेलिंग यू अगेन, इफ अ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट अबाउट विच वी आर कंसिडरिंग द मोमेंट, ট্রান্সলেটিং ইন এসএমএস, যদি আমি কেইটামান ফৰ্চেছ দেখা পাই আছো যে সেই ফৰ্চেছ কেইটা সেইটো পইণ্টেদি ক্ৰছ হৈ আছে বা পাছ হৈ আছে, যোনটো পইণ্টেদি আমি মোমেন্ট ক্যালকুলেট কৰি আছো, we are calculating the moment about E, then those forces will have zero moments. In this case, through E, 12 kilonewton is passing through, F7 is passing through, F5 is passing through, but F4 is passing away from E at a certain perpendicular distance. So this perpendicular, this was 2.5, CB was 2.5 meter, so this was 60 degree। तो CE का वैल्यू हमारे पास 2.5 cos 60, this is 90 degree, तो this is 2.5 cos 60, तो cos 60 is half, तो 1.25 आ जाता है मीटर। तो CE is 1.25। ठीक है, तो आप कंसिडरिंग दिस, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा,
ये वाला। तो ये नीचे की तरफ जाएगा, 1.25 नीचे की तरफ गया तो cos 1.25 cos 60, और ये परपेंडिकुलर की तरफ जाएगा तो दिस वैल्यू विल कम आउट एज 1.25 मीटर इंटू साइन 60। तो हम लोग को F4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिल गया ना फ्रॉम ई, F4 इंटू आरबी एंटी क्लॉकवाइज, तो आरबी इंटू दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? आई सपोज ये डिस्टेंस को मैं एक बार के लिए मैं आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस को x मान लेता हूं। लेट अस सी, सो आई कंसीडर दिस एज x, और F4 का डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, आई एम सपोजिंग दिस टू बी, यहाँ पे ये डिस्टेंस आ रहा है, तो दिस इज द डिस्टेंस 1.25। तो आरबी इंटू एक्स, आई डोंट नो एक्स एज ऑफ येट, अभी कैलकुलेट नहीं किया मैंने, बट F4 इज क्लॉकवाइज। देखो आरबी एंटी क्लॉकवाइज, F4 क्लॉकवाइज हो रहा है, इसके अबाउट क्लॉकवाइज घूम रहा है। So you have to consider the what direction of the forces and the moment it is causing. तो F4 minus F4 into distance कितना है? The distance is this much, perpendicular distance. तो 1.25 into sin 60 must be equal to 0. ये x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो CB is 2.5, तो CB is 2.5 मीटर, माइनस हम लोग को ये डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा ना। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज 1.25, दिस डिस्टेंस इज 0.625, सॉरी। कैसे? क्योंकि ये डिस्टेंस सी का जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट, दिस इज दिस, तो सीई, तो ये तो 1.25 आया, ये भी 60 डिग्री, तो 1.25 cos 60 करोगे तो नीचे आ जाएगा 0.625, तो 2.5 माइनस 0.625 विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। यही तो डिस्टेंस है ई से आरबी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, so दिस इज इट। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? लेट अस सी, तो 2.5 minus 0.625, I am getting the value as 1.875. This is 1.875. So RB का वैल्यू कितना था? RB का वैल्यू थोड़ा देर पहले निकाला, 10 into 1.875 is the distance of RB from the point that we have considered the moment about, that is E. तो वहां से वहां तक का डिस्टेंस ये जितना है उतना ही रेक्टेंगल की तरह बन रहा है। फाइन, इज इक्वल टू F4 into 1.25 into sin 60 is √3/2। सो हमारे पास आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 18.75, नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू √3, दिस इज विद F4। so 18.75 into 2 divided by 1.25 into √3, 1.25 into √3, just a minute guys, 1.25 इंटू √3 आप लोग का कितना आ रहा होगा? 10√3, यानी कि 17.32 वैल्यू आ रहा है। आई हैव 17.32 किलो न्यूटन एज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन मेंबर 4। F4 आ गया आपके पास, यू हैव फाउंड आउट F4। अभी हमको F5 निकालना है या F7 निकाल लेते हैं। तो F5 निकालने के लिए या F7 निकालने के लिए, इफ आई टेक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट C, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, if I take sum of moments about C, you can take the moment in the non on the other part of the section also. So if I take sum of moments about C must be equal to 0, it means what, कि F5 तो C से पास कर रहा है, F4 भी C से पास कर रहा है, सिर्फ F7 जो है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पार कर रहा है ऐसे करके, और RB है C के अगेंस्ट, RB आ रहा है, F7 आ रहा है, और 12 किलोन्यूटन आ रहा है। देखो तीन फोर्सेस काम कर रहा है। इफ आई कंसिडर सी, तो अबाउट सी आई विल हैव F7, आई विल हैव 12 किलोन्यूटन, 12 किलोन्यूटन F7, और इधर से हमारे पास जाएगा RB। ये तीन अलग अलग फोर्स काम कर रहा है अबाउट पॉइंट सी, जिसका मोमेंट होगा पॉइंट सी के अबाउट। Otherwise F5 will not have any moment about C, F4 because these two forces are passing through C. So हमारे पास क्या आएगा? F7 एंटी क्लॉकवाइज, पहले आरबी का लिख लेते हैं। तो आरबी का सी से डिस्टेंस कितना है? सीबी, दिस इज द डिस्टेंस, so this distance is 2.5, so RB into 2.5 मीटर considering moment at C। so ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया भाई, फाइन।
नाउ ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। फिर 12 किलो न्यूटन जो है वो नीचे की तरफ ऐसे काम कर रहा है, ऐसे। तो उसका डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस चाहिए हम लोग को 12 किलो न्यूटन का। तो 12 किलो न्यूटन इंटू दिस डिस्टेंस, तो ये तो क्लॉकवाइज हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है देखो। अबाउट सी ये क्लॉकवाइज होगा, तो 12 इंटू दिस डिस्टेंस, ये तो 1.25, ये पूरा सीई 1.25, उसको cos 60 कर दो, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.625। 12 इंटू 0.625 प्लस, अब अबाउट सी F7 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज 2 में है, देखो। तो अगर आरबी को प्लस लिया तो F7 को भी प्लस लेने का, तो F7 इंटू सीई मस्ट बी इक्वल टू 0। सो आरबी का वैल्यू 10, आरबी का वैल्यू 10, तो 10 इंटू 2.5 25 माइनस 12 इंटू 0.625 प्लस F7 आई डोंट नो, सीई का वैल्यू 1.25, दिस सीई इज 1.25 इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या आ जाएगा इस, तो आई विल हैव 25 यानी कि 12 इंटू 0.625 अगर हम लोग करते हैं तो आई एम गेटिंग 7.5। 25 में से माइनस 7 कर दो तो आई एम गेटिंग 17.5। जस्ट अ मिनट, 12 इंटू कितना था 0.625, आई एम गेटिंग 7.5। 25 में से माइनस 7.5 कर दो, दिस इज 7.5। 25 minus this, I am getting 17.5. So I am getting 17.5 for this value is equal to minus F7 into 1.25. तो 17.5 को डिवाइड कर दो 1.25 से, I am getting 14. So F7 I am getting minus 14 किलो न्यूटन। मतलब हम लोगों ने F7 का जो डायरेक्शन लिया है अभी, हम लोगों ने अभी जो कंसिडर करके सॉल्व किया था, हम लोगों ने लिया था ऐसे, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर ये डायरेक्शन अभी उल्टा होगा बिकॉज माइनस साइन में आंसर आएगा। तो माइनस साइन सजेस्ट दैट द फोर्स इन 7 विल नॉट बी दिस वे, अदर एल्स यहाँ पे ये चीज हम लोग को चेंज करके हम लोग को फिर F7 ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज द रियल डायरेक्शन ऑफ F7, इट विल बी टुवर्ड्स E। So F7 will be equal to, F7 is equal to 14 kilonewton towards E. Am I clear, all of you? Yes or Yes, no? sir. Rutpal, is it clear? Yes, sir. So this is F7. I have got F5, F4 हम लोग को निकाल लिए हैं, हम लोगों ने F4 निकाल लिया, हम लोगों ने F7 निकाल लिया। अब क्या करना है, हम लोगों को F5 निकालना है। तो F5 निकालने के लिए क्या करोगे आप, F5 निकालने के लिए F7, F4 पता है, फिर उसके बाद F5 निकालने के लिए इफ आई टेक सम ऑफ मोमेंट, इफ आई टेक सम ऑफ मोमेंट अबाउट बी भी ले सकते हैं, यू कैन टेक, देख लो। इफ यू टेक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट बी इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, F7 जो है वो ऐसे आ रहा है, वो बी से पास हो रहा है, तो F7 का मोमेंट 0 हो जाएगा अबाउट बी। फिर F5 एक रह जाएगा गाइस, तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं अभी आप लोगों के लिए, फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेल। अब डिस्टेंसेस तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इफ यू वॉच द वीडियो अगेन यू विल गेट टू नो। तो ये जो वैल्यू था यहाँ पे, ये पूरा ऐसे करके था, ये सेक्शन ड्रॉ किया हुआ था, दिस वाज F4, यहाँ पे F4 था, ये सेक्शन था F4, यहाँ से ये सब तो डॉटेड लाइंस था, सेक्शन लाइन वाज ड्रॉन समथिंग लाइक दिस। फाइन, तो हमारे पास सेक्शन लाइन यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ किया हुआ था। अबाउट बी निकालते हैं अगर, इफ आई टेक द सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट बी, ये सब हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। अब देखो क्या होता है, F7 का डिस्टेंस में F7 का डायरेक्शन मुझे मिल गया, ये डायरेक्शन ऐसे था, F4 RB, तो अबाउट बी अगर मोमेंट लेंगे तो RB का मोमेंट 0 बिकॉज वो तो B से पास हो रहा है, F7 का मोमेंट 0 क्योंकि वो B से पास हो रहा है, F4 का मोमेंट 0 बिकॉज वो भी B से पास हो रहा है। तो हम लोग के पास बच गया क्या, F5 और 12 किलोमीटर नीचे की तरफ, ऐसे दो ही बचा। सो अबाउट बी अगर 12 किलोमीटर को देखते हैं तो ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 12 इनटू ये डिस्टेंस चाहिए हमको, आई वांट दिस डिस्टेंस, आई वांट दिस डिस्टेंस फॉर 12 किलोमीटर एंड बी। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना आएगा 2.5 में से, ये 2.5 यहाँ से लेके यहाँ, सॉरी सी बी जो हो गया वो 2.5 हो गया, 2.5 में से हम लोग को इतना माइनस कर देना है, तो इतना माइनस कर दो, इतना क्या मिला था हम लोग को 0.625 मिला था, बिकॉज दिस वाज 1.25, उसको cos 60 किया तो 0.625 आया, तो 2.5 माइनस 0.625, तो 2.5 माइनस 0.625 करने से मेरे पास आ रहा है 0.625
I am getting this value as 1.875. I am getting this value as 1.875. Just a minute, please. I am getting 1.875 मीटर. किसका? 12 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्शन जो है उसका बी से डिस्टेंस है, तो 1.875 ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस F5. यहां से देखो तो F5 है गाइस. F5 का परपेंडिकुलर, ये तो 90 डिग्री है ही, तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया F5 का. दिस इज 90 डिग्री. तो माइनस F5 ना, माइनस क्यों? क्योंकि F5 भी तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है. देख लो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. 12 भी एंटी क्लॉकवाइज. देखो तो पॉइंट बी और F5 ऐसे काम कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना भाई, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ. तो अगर 12 को प्लस माना है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी प्लस मानो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव. सो F5 into distance is BE must be equal to 0. So if I multiply this 12 into 12 अगर हम लोग कर देते हैं, I get the value as 22.5. This is 22.5 plus F5 into this distance BE is simple. कैसे निकाल सकते हो आप लोग? ये हमारे पास ये दिया हुआ है गाइस, ऐसे करके था. ये C था, ये B था, ये 90 डिग्री, CB is 2.5 मीटर, ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री था. तो यहाँ से 2.5 cos 60 किया तो हम लोग को 1.25 मिला. 2.5 cos 30 कर देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा. दिस विल बी 2.5 cos of 30. So plus into 2.5 cos 30 is equal to 0. So I'll have 22.5 is equal to minus F5 into 2.5 cos 30 is root 3 by 2. So हमारे पास 22.5 में 2 मल्टीप्लाई कर दो. You see F5 will come out something as minus 22.5 into 2. 22.5 into 2 कर दिया, I got 45. और उसको डिवाइड कर देंगे 2.5 रूट 3 से, तो डिवाइडेड बाई 2.5 into root 3. So I'm getting the value as 6 root 3. I'm getting 10.39. Minus 10.39 kilonewton is the load acting at the force acting in F5. बट माइनस साइन है, इसका मतलब जो डायरेक्शन ऐसे लिया था हम लोगों ने वो ऐसे सही होगा गाइस, towards E. Again this will be towards E. इस तरीके से हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन यूज करते हैं. हम लोग को वैसे वैसे पॉइंट्स चूज करना पड़ेगा जिसके अबाउट मोमेंट लेने से, इफ वी कंसिडर द मोमेंट अबाउट दोज पॉइंट्स, some of the forces some of the moments of the forces get nullified because they are passing through those points. जैसे अभी B के अबाउट लिया तो F7 B के थ्रू से जा रहा है, F4 B के थ्रू से जा रहा है, RB B के थ्रू से पास हो रहा है, तो फाइन F5 निकाल लेंगे. That is why method of sections become easy to determine, easy to use, because ये short है, छोटे में काम हो जाता है. अदरवाइज अगर आपको F7 निकालना पड़ेगा तो मेथड ऑफ सेक्शंस जॉइंट से आपको पहले B निकालो, फिर C या फिर E निकालो, फिर जाके यहाँ पे पहुंचो. तो हर जगह हर जॉइंट पे आपको सम ऑफ फोर्सेज इन x डायरेक्शन मस्ट बी 0, सम ऑफ फोर्सेज इन y डायरेक्शन मस्ट बी 0. आपको जॉइंट्स का इक्विलिब्रियम कंसिडर करते करते करना पड़ेगा, विच इज अ बिट व्हाट ट्रबलसम और थोड़ा सा लेंथी हो जाता है. बट मेथड ऑफ सेक्शन इज गुड इनफ, आपको कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो इससे. नेक्स्ट क्लास में आस्तु का पेपर को सॉल्व किया जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा गाइस. मैथमेटिक्स आई विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, उसका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा. ऑलराइट एवरीवन, दिस विल बी एनफ फॉर Yes, टुडे. sir.